Say creators. Reality shows. Yes, reality shows. Tell me, someone like you who's done so much work, what is reality show for you? For sure money, Yeah. because एक्टिंग वर्क से अगर आप कंपेयर करोगे हाँ. तो जब तक आप टॉप 10-15 एक्टर्स में नहीं है योर मनी इज प्रीटी मच लाइक प्लेटोड. रियलिटी शोज गिव्स यू अ सडन स्पाइक, अ सडन बूस्ट. इट्स लाइक अ एनर्जी बूस्टर इन योर career. Karan, you know very well, and but Not when very you're well here, is- yeah. what is different? Karan sir, I have seen him in 2 different avatars now. Yeah, as a director. As a director, he's the most approachable guy. He's like lovely. He's just sitting on the monitor. He's roaming. He's talking to the ADs. A Dharma set is one of the most like flourishing, happy set. काफी actors को reality shows में जाना है. You tell them how does this happen? Traitors was a format that I followed Hmm. internationally, and then when it came to India, I was one of the most enthusiastic people because Right. the concept in itself is a winner. Right. it आप is. faces change करते रहो, ये show फिर भी चलता रहेगा. Some of the surprises for us was say a Mallika Sherawat. Murder आपने देखी, आपने उनकी सारी movies देखी. And she was also a icon in terms Yeah. of she was bold, she was Yeah. not, she was fearless to talk her mind. Then she went to Hollywood. Yeah. Jackie Chan के साथ movie की. Then there's a Riya Chakravarti who has had such a turmoil in her life. Today, look at her. She's an entrepreneur. She's Chapter 2. Yeah, chapter 2. And here, what did you observe about her? Having seen her go through what's happened in the last 5-6 years, anybody in a position would have crumbled. Yeah. It's not easy. None of it was easy. All of it was unfair. There's a Munawar who again has a following of his own. He's a He's like a cultural icon. yeah. True. What is there to learn from him? वो एक्चुअली लाइफ में ना किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहता. उसका इंटेंशन बहुत ही क्लीन और प्योर है. जिस हिसाब से वो बात करता है, वो गेम में भी आया तो इंटेंस था. ही वाज प्लेइंग द गेम वेरी हार्ड, बट एज अ पर्सन ही इज वेरी नाइस. बताइए, जब ये पहली बार आपको करण जोहर आपके हाथ रखता है, व्हाट इज दैट मोमेंट लाइक? मेरे को लग रहा था कि नहीं होऊंगा मैं सिलेक्ट. अच्छा. बिकॉज वो काफी टाइम स्पेंड हो गया था. एंड दे डू मेनी ट्रिक्स यार. अच्छा. ऐसे आपको लग रहा है करण सर चल रहे हैं आसपास. Harman, welcome to Bollywood Hangama. Good to see you. इट्स अमेजिंग टू सी यू. आप एक तो इतनी दूर से जो आए हो ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. I know. You have traveled the 7 seas to come to my place. That's true. Just tell people कितना डिस्टेंस है आपके और मेरे घर से. मैंने एक टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया जस्ट टू शो, तो लिटरली वो 1 मिनट का भी नहीं रिकॉर्ड हुआ सैडली. मैं आज वॉचमैन बाहर आया कि गाड़ी की चाबी ऐसे नहीं चाहिए, फर्स्ट टाइम रखो गाड़ी की चाबी. हम लिटरली नेबर्स हैं. Yeah, neighbors. So I keep seeing you on and off, but good to straight away jump in and do this. Let's do it. Right. I'm going to take you back. Today, what all you have achieved, people recognize you, you're on TV. I think they're starting to recognize me. They're starting to recognize you. When you came in this industry, what all did you want to do back then and what all have you achieved? I came here 16 years back और तब मैं मर्चेंट नेवी में था. And Ranvijay was 4th or 5th year into MTV. So he was like super famous. जहाँ पे भी हम जा रहे थे, I could see like a new world जो हमने कभी experience नहीं किया था. My father comes from the army. My grandfather, both sides are army. So either you become a farmer or you join the army. हमारी family का वो simple, typical Punjabi family. And Ranvijay had this X factor since he was a kid. Yeah. He was a star even when he was in college, even when he was a kid. When he started doing this media-related job as a VJ, me, my friends, our extended family, everybody got to experience this new city of dreams, Mumbai. हमारे को कोई experience नहीं था. So I came to give my exams कि यार मैं Merchant Navy मैं नहीं जाना चाहता, but मैं रणविजय के साथ जा रहा हूँ कि वहाँ पे एग्जाम्स दूंगा. So I lied to my parents. They thought कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, but मैं यहाँ पे आके I started doing an internship in a production house. Okay. So I spent 3 years doing television, reality television. That was my first stint in reality TV. As a DA on MasterChef, associate creative director on MasterChef, Roadies, एक और show, मतलब 5-6 show किए. और उसके बाद मुझे realize reality TV is not for me. And I shifted to fiction. So I used to assist Nagesh Kukunur as his first AD. Wow. I used to write under Abbas Tyrewala. So 2 years that was like film school. Till I was 25, I decided कि मुझे writer director बनना है. हाँ. और रणविजय एक्टर बन रहे हैं, उनकी फिल्म्स आ रही हैं, तो ये कॉम्बो हो जाएगा. न्यू सलीम जावेद, बट एक्चुअल ब्रदर्स की मैं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा और रणविजय एक्टिंग करेंगे. दैट वाज द फर्स्ट प्लान. तो एक फिल्म हम बनाने लगे थे जब मैं 25 साल का था. इट्स कॉल्ड लव का हैंगओवर, व्हिच आई हैड रिटन एंड रणविजय वाज द एक्टर. बट वो फिल्म किसी कारण कंप्लीट नहीं हुई. फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स, हमें भी नहीं पता था, पैसे का प्रॉब्लम, ये वो, लो बजट, नो बजट, एंड वो फिल्म नहीं. उसके बाद
this whole space of YouTube started opening up. Yeah. So I used to do a travel show. 5 people crew जैसे आपकी टाइट यूनिट है, हाँ. अकेले जाके शूट करना, एडिट करना, प्रोड्यूस करना, होस्ट करना, स्क्रिप्ट लिखना, सब कुछ अलग अलग एक्सपीरियंसेस सीखने लग पड़ा मैं. एंड देन आई वाज जस्ट गोइंग विद दैट फ्लो कि यार जहाँ काम मिल जाए. 2014-15 में कुछ फिल्में बन पा दी थी. पूरा सपना फिल्मों का ही था. एक बार पहली बार जब मैं फिक्शन सेट पे गया, मैंने कहा यार एक कैमरा वाला अच्छा सिस्टम है. रियलिटी शोज में 50 कैमरा, 500 लोग, बहुत अलग नेचर ऑफ द जॉब है. Right. एंड वहां से धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग फिक्शन, नॉन फिक्शन, बोथ. There's a show that became kind of my identity. It was called Aisha, My Virtual Girlfriend. Science fiction show. I wrote and acted in it. So the feeling of writing and acting, performing that, लोग आ रहे हैं जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है उसको बनाने के लिए, that was very exhilarating. Right. So I think I've just been chasing that with writing and acting, hosting for NBA, Discovery. Nice. Very nice work profile. I have एक दो project छोड़ के जितना भी मैंने काम किया, I think it's added value. Right. Added more presence, more confidence on camera. Because मैं हमेशा vanity van में knock करके AD था, और वहाँ से to sit in the vanity van is a different experience. Right, you know, you're so easy on camera. Whatever you watch, your travel shows, you on traitors and all, you're as good behind the camera. What do you enjoy? Do you enjoy both? Being an actor, you have a lot of time यार. आपके पास वक्त ही वक्त है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो 20 लोग सबसे ज्यादा बिजी हैं, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं. उनकी डेट्स 5-5 साल तक नहीं है. उसके बाद जो हमारे जैसे लोग हैं जो अभी भी ऑडिशन कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, वो साल में अगर एक आधा प्रोजेक्ट कर लें, कहीं कैमियो कर लें, तो उतना ही होता है उनका. राइट, ट्रू. यू नो, मैं इतने एक्टर्स से इंटरव्यू करता हूँ और ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेइंग व्हाट यू आर सेइंग, बहुत वक्त दैट काम नहीं है. Has it become like that? You know, you've been around for quite some time now. एक दो साल में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग आ गए हैं? What has happened? It's very interesting because मैंने तो 2010, 12, 14 से समझना शुरू किया थोड़ा बहुत, बट तब भी एक 2014-15 में भी ऐसा था यार काम नहीं है, बिकॉज कैटेगरीज अलग थी कि आप यहाँ तो टीवी करिए या आप फिल्मों में. अगर आप एक थर्ड कैटेगरी थी नहीं तब, तभी आपने देखा AIB, TVF, इनका राइज जब हुआ, तो हम सबको भी कॉन्फिडेंस आया कि यार हम थोड़े से पैसे में भी कुछ अलग ही स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं और यूट्यूब पे डाल सकते हैं. राइट. जिन लोगों ने वो उस टाइम पे किया, वो फिर OTT में घुस गए. जब OTT इतना एक्सपैंड हो गया तो बॉलीवुड OTT में आ गया, और उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं. लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री अभी भी पूरा एक्टर्स के फेवर में स्क्यूड है. आप कितना भी कहें कि वी वांट टू सपोर्ट क्रिएटर्स, वी आर बैकिंग राइटर्स, डायरेक्टर्स, गेम अभी भी एक्टर्स के हाथ में जी. एंड वो दैट बैलेंस इज ऑफ. कई सारे मैंने प्रोजेक्ट्स ऐसे किए जहाँ पे एक्टर्स फी, एक जो मेन बंदा है उनकी फी पूरे क्रू और सबसे ज्यादा मिला के, सो जहाँ पे भी ये स्टेबलाइज होगा. जैसे एक एग्जांपल है बेन एफ्लेक और मैट डेमन का. उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ अभी एक फिल्म की, बहुत एक अमेजिंग फिल्म है, बट प्रॉफिट शेयरिंग गोज टू ईच एंड एवरी क्रू मेंबर. दैट्स अमेजिंग. वाओ. सो वी नीड टू थिंक ऑफ क्लेवर वेज टू ब्रिंग एवरीबॉडीज एनर्जी बैक. सब लोग काम करना चाहते हैं, सबको क्रिएटिव प्रोसेस पसंद है, चाहे आप एडिटिंग कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्शन डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप साउंड कर रहे हो, म्यूजिक, सबको मजा आता है इस इंडस्ट्री में काम करने का. अभी बस ऐसे लग रहा है थोड़ा होपलेसनेस है. राइट. ये यू नो ये इम्बैलेंस में एडीज से भी बात करता हूँ, और मुझे रिसेंटली पिछले हफ्ते एक एडी ने बोला एक बड़े OTT का शो आया था, बट जो ऑफर आया विथ हर एक्सपीरियंस, बोला इट वाज नॉट इवन 50,000 रुपीज फॉर द होल प्रोजेक्ट. शी लाइक दिस इज नॉट वर्थ, आई हैव बीन डूइंग एडीज फॉर 10 years. So, you know, clearly what you're talking about is so real. ये पूरा imbalance, I hope at some point ठीक हो. Do you keep hearing stories from your writer friends, actor friends, director friends? First of all, I have to say कि मेरे लिए पिछले 1.5-2 साल मेरे करियर के सबसे अच्छे साल रहे हैं. Touch wood, चलो, so, great. Family Man released 8-9 months back. अब होगा हिसाब, on MX Player came out. Now Traitors has come out. Just having releases in this period is feeling like a victory. Let alone कि मेरा रोल क्या था, इम्पैक्ट क्या था, क्या काम मिलेगा आगे. और सबको ये पता है कि यहाँ तो आपके पिताजी यहाँ बैठे हो, सुबह उठ के वो डिसाइड करें कि आज मेरे बेटे का करियर कैसे बनेगा. जो हम लोग खुद ही कर रहे हैं. जैसे आई हैव रणविजय, बट रणविजय आल्सो हैज अ फैमिली, ही हैज मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, ही इज अ बिजी गाय. सो हम लोग का हर जॉब के बाद ये होता है कि यार हाउ डू यू फाइंड द नेक्स्ट जॉब, हाउ डू यू फाइंड द नेक्स्ट जॉब. पहले टेक्नीशियंस के साथ वो नहीं होता था. टेक्नीशियंस वर क्वाइट सॉर्टेड. नाउ टेक्नीशियंस आर फीलिंग दैट इट्स गॉट समथिंग टू डू विद AI, because it's becoming unbelievably good. It is, yeah. And it will have another shift. You have to become better at your skill. You have to become specialized.
if you're a VFX artist, you have to be among the top 50, 60 to get regular work. Yeah. So earlier there was also a lot of redundancy in terms of a lot of people were doing the same job. Now the computer is doing that job. So maybe you need lesser people to do it. True. Absolutely right. You know, coming to what you did now, say traitors. Reality shows. Yes, reality shows. Tell me, someone like you who's done so much work, what is reality show for you? Is it one? It takes you ahead in the fame game. It gives you good money. What all does it add to you? For sure money. Yeah. Because acting work से अगर आप compare करोगे हाँ. तो जब तक आप top 10-15 actors में नहीं है, your money is pretty much like plateaued. Correct. आई नो पीपल जो 10 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, जो अभी 3-4 साल पहले भी थोड़े से शोज कर रहे हैं, उन सबका पैसे एक जैसे हैं. टॉप लोगों के बहुत अलग है, जो ब्रांड एम्बेसडर्स है, फेसेस हैं, बॉक्स ऑफिस हेडलाइन कर रहे हैं, वो अलग है. बट reality shows gives you a sudden spike, a sudden boost. It's like a energy booster in your career. I don't know if you're feeling it. I'm feeling it. Lines are not there anymore. Right, there are no lines. आप बहुत सक्सेसफुल फिल्म करके, एक रियलिटी शो करके, एक स्टैंड अप शो करके, आप पॉडकास्ट करके ये सब कर सकते हो. रवि किशन इज द एग्जांपल, राम कपूर इज द एग्जांपल. दे आर टॉप नॉच एक्टर्स, वेरी वांटेड ऑल द टाइम. राइट. एज कैरेक्टर आर्टिस्ट नाउ लीडिंग मैन. बट वो दोनों रियलिटी शो पे आके उन्होंने कमाल कर दिया. सो व्हाई नॉट. पहले हमारे को बहुत सारे एप्रीहेंशन थे, ये टीवी एक्टर है, ये रियलिटी शो एक्टर है, ये है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है. अब अगर आपके पास टाइम है और मेहनत कर रहे हो तो आप सब कुछ कर सकते हो. नाइस. यू नो, कोई जो काफी एक्टर्स को रियलिटी शोज में जाना है, you tell them how does this happen? I don't know, for me ट्रेटर्स का स्पेसिफिकली मैं कहूँगा, बिकॉज मेरे को दूसरे शोज से भी कॉल आए. Okay. बट ट्रेटर्स वाज अ फॉर्मेट दैट आई फॉलोड internationally, and then when it came to India, I was one of the most enthusiastic people because the concept in itself is a winner. Right. आप faces change करते रहो, ये show फिर भी चलता रहेगा. Simple सी बात है. The celebrities are not making the show. The show in itself is strong enough. तभी वो 30-40 countries में बन रहा है. जी. Continuously. For actors, reality show में जाने के लिए, I think there's something in your personality that should be fun. So a lot of people know me as Ranvijay's brother, but now that personality started coming out a little bit more. And after Family Man, I thought it was a good time to showcase something else. How I speak, how I am, how I am as a person. और वो धीरे धीरे आता है confidence, but you should be ready to go on a reality show. आपका past, आपका present, आपकी family, आपकी सारी चीजें reveal हो जाएंगी. 2-3 दिन आप सोचते हो कैमरा के बारे में, चौथा दिन आप भूल जाते हो. आप उस दुनिया में एकदम अब्सॉर्ब हो जाते हैं. इट्स लाइक अ सोशल एक्सपेरिमेंट जहाँ अलग अलग पर्सनालिटीज क्लैश होती है. राइट. और उसी को मजा आता है देखने. वाओ. दिस टाइम पर्टिकुलरली व्हाट अ ग्रेट मिक्स ऑफ पीपल. आई मीन कहाँ से लोग को लाए हैं. तालियां बजाओ भाई. क्या कास्ट असेंबल किया. कास्टिंग डायरेक्टर करण मल्ली जी, फैंटास्टिक जॉब. उसको एक सैल्यूट देना पड़ेगा. द क्रिएटिव टीम नेहा, निशांत, प्रोडक्शन टीम ऋषभ, इन्होंने बहुत महीने स्पेंड किए एक मतलब दे मस्ट हैव मेट 500-600 पीपल, आई एम गेसिंग. ऑफ कोर्स. राइट. उसमें से जो 21 इन्होंने उठाए हैं भाई, सारे यूनिक है. एंड इट्स अ गुड मिक्स ऑफ पीपल. या, इट इज अ ग्रेट मिक्स ऑफ पीपल. अब देखो 3 हमारे पास त्रिमूर्ति है. शालिनी पस्सी, मल्लिका शेरावत, श्वेता तिवारी. मतलब बात वहीं खत्म हो गई. आप उन तीनों को पोस्टर पे डाल दो, आपका शो चल जाएगा. उसके बाद दे गॉट लाइक यूथ आइकन्स लाइक मुनावर, अभिषेक फुकरा इंसान. राइट. Then they got very stylistic, different kind of creators. Prish, Rida, Ansh. Then you have a chef, sexiest chef in India. Ranveer, Chef Ranveer Brar. Right, the hottest man. Correct. Who's cooking. And uske alawa getting Riya on board, who's now such a thriving entrepreneur. Correct. And she was on Roadies before that. So she's on a different path. Uski trajectory abhi पता नहीं कहाँ ही जाएगी. वो क्रेजी हो जाएगा. Dilip Tayal, I worked with him in Family Man 3. Right, yeah, and what experience he has. He still come on Traitors, so cool. है ना? Yeah. So people are breaking the mold. People are breaking the perception. आप इस टाइप के एक्टर हो, आप उस टाइप के एक्टर हो. Traitors पे it's more like playing the game of Mafia and Among Us. So if you are enjoying the game, you want to come to Traitors. Right. चलो, शुरू में पता चल गया था कि आप ट्रेटर हैं. अभी तो हम वी आर सिटिंग टुडे 3 एपिसोड्स आ चुके हैं. सो वील मेक श्योर वील स्पीक ओनली नो स्पॉयलर्स इन दिस इंटरव्यू. बताइए, जब ये पहली बार आपको करण जौहर आपके हाथ रखता है, व्हाट इज दैट मोमेंट लाइक?
मेरे को लग रहा था कि नहीं होऊंगा मैं सिलेक्ट, अच्छा बिकॉज वो काफी टाइम स्पेंड हो गया था एंड दे डू मेनी ट्रिक्स यार। अच्छा ऐसे आपको लग रहा है करण सर चल रहे हैं आसपास, हाँ। पर सडनली किसी और के फुटस्टेप्स भी सुन रहे हैं, फिर 3-4 फुटस्टेप्स सुन रहे हैं, टू कंफ्यूज क्योंकि यू हमारा पूरा ब्लाइंड फोल्डेड है तो कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे किसी को टच किया, कोई सूंघ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इट वाज टू फनी। वाओ बट एज सून एज दैट हैपेंड, like all that मस्ती that was going on, मेरे दिमाग से सब चले गया, and oh हो ट्रेटर बन के खेलना पड़ेगा, but I was wishing that happens, हाँ and I just feel lucky because 21 लोगों में से आपको they've picked you for the best fun role. that is the you rather be one than not be You'd one. rather be involved in knowing the story Correct, कि रात को correct. किसको हटाना है, as opposed to just waiting कि भाई मैं मरूँ ना यार, बस Right. that's a scary one. Correct. You know, now that you have shot the whole thing, what do you think you could have or should have done differently? Many things. एक I दो should बता have दो, done एक many दो बता things दो। differently. आके यही बाहर आके यही रियलाइज होता है। ये life only makes sense Yeah. in retrospect. Yeah. एक तो मुनावर को भी मैंने बोला भाई, हाँ सबसे बड़ी मेरी गलती हुई कि यार अगर इनोसेंट्स, वैसे भी दे आर वर्किंग फॉर द ट्रेटर्स, करेक्ट या दे आर डिसाइडिंग टू टेक आउट समबडी जो नो के इनोसेंट है, हाँ 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 तो वो जब चल रहा था मुझे इतना एंथुसियाज्म नहीं दिखाना चाहिए था। Yeah. ऐसे थोड़ा ऐसा करना चाहिए था कि यार क्या तुम्हें मुनावर, हाँ, हाँ। ओह व्हाई, हाँ मैं ज्यादा एक्साइट हो गया वहां हाँ। पे कि अरे मुनावर, बिकॉज आई थॉट ट्रेटर्स को पकड़ने के लिए वन ऑफ द 2-3 बिग पर्सनालिटीज थ्रेट्स इज मुनावर, वो विनर है यार अलग अलग शोज का। जी जी बट जब इनोसेंट्स कर रहे थे वहां पे केयरफुल होना था, पारुल के साथ कैसे डील करना है, आई हैड द चांस टू किल पारुल। हाँ एक रात पहले सॉन्डुस की जगह पारुल को निकाल दिया होता, हम्म। पर मेरे अंदर वो आया ही नहीं, बिकॉज जब वो उठी है उस दिन, उसने बस डिसाइड किया कि हरमन ट्रेटर है, हाँ और समझ ही नहीं आया कैसे हो, इट हैपेंड सो फास्ट। या एंड देन अभिषेक मलान के साथ वो टास्क में शील्ड, तो 2-3 चीजें जो लोगों ने लिंक करके बनाई, बट हैव टू गिव इट Do टू you go पारुल। back and identify how do these guys know? Like, आई हैड PTSD। जैसे होता है ना युद्ध में जाके लोग आते हैं रात को ऐसे एकदम से, वो हाँ ये कुछ और करना चाहिए था, तो हाँ मेरे साथ तो ये चल रहा था, हाँ 2-3 महीने तक हुआ ऐसे हम्म कि उस दिन पारुल को निकालते, ये करते, वो करते, और अब मुझे समझ आया कि जैसे रणविजय हो गए, प्रिंस, वरुण सूद, रिया, ये सब जब रियलिटी शोज करते हैं सालों साल, या बाप यू हैव टू बी वेरी शार्प, Yeah, यू yeah, हैव टू बी yeah. वेरी प्लग्ड इन, करेक्ट और एक उसमें एक चीज है आपको स्मार्टनेस और डिसेप्शन, जैसे रणविजय डज इट एफर्टलेसली, Yeah. लोगों को पता भी नहीं चलता, पर वो हाँ। गेम कैसे खेलते हैं बड़े प्यार से, तो ये चीजें मतलब दिस इज अ डिफरेंट स्किल सेट, करेक्ट सो आई एम जस्ट लर्निंग लर्निंग। राइट इज देयर समवन यू ट्रस्टेड एंड देन यू वर लाइक यार नहीं ट्रस्ट करना चाहिए था आई थिंक टू सम एक्सटेंट अभिषेक, अभिषेक या तो मैं फुकरा को एंड तक सर्कल ऑफ शक से जाने हाँ। पहले तक, वेयर ही हैड स्क्रीम्ड एंड ही हैड शाउटेड एट मी, ही हैड सेड ऑल दिस थिंग्स, हाँ तब भी मैं कह रहा था कि भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पारुल को निकालते हैं, हम्म पर नहीं आप ही हो, आप ही हो भाई। और उसने शो के बाद मुझे बोला कि भाई आपको मैंने निकाल के ना मैं खुद बोर हो गया, हाँ उसके बाद कोई हैंग आउट करने के लिए बचा ही नहीं। राइट हु डू यू थिंक जिसके आगे आप झूठ बोल ही नहीं सकते हो, ये पकड़ लेगा या पकड़ लेगी सबको, कौन है वो इन द शो, हाँ इन द शो राइट नाउ रिया, पारुल, रिया और पारुल Riya they are Parul. really sharp they are very sharp, and Chef, even though he was on to Kullu, the funny thing was he never suspected me, वो लास्ट तक मेरे को डिफेंड कर रहे थे, even though हम दोनों के बीच में वोटिंग चल रही थी, हाँ so that was just the kind of mutual respect we had, correct but रिया और पारुल से झूठ बोलना Sharp. मुश्किल है। Yeah, wow. You know, how is your experience when you go there? We to only see the show. Do you all get to talk? Do you all get to But what was your interact? take on the first couple of episodes? Is it entertaining? Is it It's fun? super. I watched the first season full on. I watched this season, so I can't wait to watch more. But I love it. I love the production. मुझे like you said, one casting जो आप सब इतने different mix आए हो, और क्या production है, ये world class production है. So first season BBC India done it. Yes. Then this season, now Dharmatic is doing. Yeah. But they have retained the same key players. So from the floor running team that's led by Dazad, Correct. to Neha and Nishan who lead the creatives, to Rishabh who's my childhood friend. Okay. He leads the production. Okay. From there, Sudhir Kaushik, the DOP, the production designer, all of They've them retained that. That's are amazing. just like they work like a team. जो international format Yeah, holders हैं, yeah. वो इंडिया आके देख के कह रहे हैं कि इंडिया की बेस्ट प्रोडक्शन है। Wow. No, it is incredible. 400-500 लोग टनल्स के थ्रू एक होटल को मॉडिफाई करके ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैमरास हिडन है, एज अ कंटेस्टेंट यू हैव नो आइडिया व्हाट एन ऑपरेशन इज गोइंग ऑन,
And because I've lived as a traitor, there is a different world created only for the traitors. आपको रात को sneak out करते हैं रूम से, रोब आता है वहां से, एक एक लोग को अलग अलग निकालते हैं. तो contestant you don't see one entering going this that कोई Because game can be over in 1 second. अगर देखो क्रू में से किसी ने लीक कर दिया, गेम खत्म. correct that's कंटेस्टेंट्स में से किसी ने लीक कर दिया, गेम खत्म. किसी ने अगर एक रेड रोब कहीं से जाते हुए देख लिया, उसको बोला यार यहाँ पे तो हरमन का कमरा है, तो गेम खत्म हो गई. तो आपको होटल को जिस तरह आपको यूज करना है, उस पे तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ. मैं इनको बोल रहा हूँ कि यार तुम द मेकिंग ऑफ द शो इज वेरी इंटरेस्टिंग, wow that बिकॉज is दे कीप द सैंक्टिटी ऑफ दैट सीक्रेट, दैट हु इज द ट्रेटर. वो 4 लोग का अगर नाम कहीं पे भी निकल जाए तो गेम इंस्टेंटली खत्म हो जाएगी. wow you know Karan you know very well and but Not but when very you're well here is- yeah. what is different Karan sir, I have seen him in 2 different avatars now. yeah as a director As a director, he's the most approachable guy. He's like lovely. He's just sitting on the monitor. He's roaming. He's talking to the ADs. A Dharma set is one of the most like flourishing, happy set. जहाँ पे ADs स्माइल कर रहे हैं. मैंने तो पूरी जिंदगी देखा ADs बेचारे पसीना निकल रहा होता है और 2 दिन से सोए नहीं होते. यहाँ पे ADs are allowed to talk, chill. Anybody's idea is welcome. So Karan Johar as a director that I saw for 10 days on Rocky Aur Rani is the most collaborative and very very easy to work with. He's an actor's director. Karan Johar as the host of Traitors is not approachable at all. yeah He doesn't even look at you. वो मतलब वो आते हैं अपना line बोलते हैं, because I had asked him this also once कि आप Traitors season 1 में आप ऐसे क्यों थे, आप बात ही नहीं करते किसी से. He's like कि मैं खुद गेम भी खराब कर सकता हूँ. yeah that's yeah अगर किसी ट्रेटर के उस पे उन्होंने ऐसे रिएक्शन दे दिया, बट उतने में गेम खराब हुआ. true So he has to also hold the cards. He knows who the traitors are. He knows what's happening, and he can't give away the game also. right that's But his character this season is even better than the Yeah, first yeah, season. He's just like he keeps that mystery and that danger alive in our hearts. वो जब भी आते हैं ना तो ऐसे comforting नहीं लगता है, uncomfortable लगता है. It's the opposite of what I felt on the movie. राइट यू नो कई रियलिटी शोज में ये होता है, तो यू नो पीपल एक इम्प्रेशन बनाते हैं यार ये सब फिक्स्ड है. इन हरमन को भी सब पता है, करण जौहर को भी सब पता है, इनको भी सब पता है. तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम, बिकॉज व्हाट यू आर टेलिंग मी इज सो डिफरेंट, लाइक यू नो. मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है ट्रेटर्स, हाँ बिग बॉस, हाँ रोडीज, स्प्लिट्सविला, हाँ. ये आप सारे देखते हो. अब लॉकअप, अलायंस, करेक्ट आपको लग रहा है अगर हमारे देश में ऐसे राइटर है जो ये लिख पा रहे हैं, तो भाई गेम ऑफ थ्रोन्स कोई चीज ही नहीं है. 50 एपिसोड की स्क्रिप्ट लिख के, लोगों को डायलॉग दे के, लोगों की लड़ाइयां कराना, ये क्रिएट करना, मैं तो चाहूंगा कि ऐसा कोई लिख दे भाई. कोई लिख दे एक रियलिटी शो की स्क्रिप्ट, एंड दैट विल बी द हाईएस्ट पेड राइटर, बिकॉज द थिंग इज इट्स अ सोशल एक्सपेरिमेंट करेक्ट या जिसमें प्री डिजाइंड होती है क्रिएटिव्स. हर एपिसोड का स्ट्रक्चर डिजाइन होता है. ये चैलेंज होगा, इस चैलेंज में से एक विनर होगा, उसको इम्यूनिटी मिलेगी या शील्ड मिलेगी. ये ऐसे एलिमिनेशन होगा. ट्रेटर्स में 2 अलग एलिमिनेशन है, एक सर्कल ऑफ शक करेक्ट और एक मर्डर. रोडीज में अलग है, अलायंस में अलग है. जब वो स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और वो बन गया, उसमें आप जब तड़का डालते हो प्लेयर्स का या कंटेस्टेंट्स का, उनकी सिचुएशन ही ऐसी है कि उनको आपस में क्लैश होना पड़ेगा. राइट कुछ अलायंसेस होंगी, कुछ ग्रुप्स बनेंगे, कुछ लोग स्ट्रांग होंगे फिजिकली, कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होंगे. आप सिलेक्ट ही ऐसे लोग कर रहे हो हजारों में से कि तुम्हें पता है कि यार हरमन और सपोज रणविजय सामने खड़े हैं, इन दोनों की नहीं बनती. इनको एक बास्केटबॉल की गेम खिलाओ. राइट जैसे हमारे बीच में सिर्फ स्पोर्ट्स ही एक चीज है जहाँ पे हम दोनों कंपेटिटिव है. करेक्ट हाँ पैडल खिलाओ इनको, तुम्हें पता है वो दोनों एक दूसरे को गाली देंगे और लड़ेंगे. लड़ेंगे. सो इट हैज टू बी डन इन द क्रिएटिव्स. और लोग को बोलना बहुत आसान है कि यार ये स्क्रिप्टेड है. आप स्क्रिप्ट करके दिखाओ. आई अर्ज यू टू ट्राई टू राइट 50 एपिसोड्स, 20. इट्स impossible. Right. But the ढांचा is called a run order. It's called the creatives of a show. It's called the format. That in itself has enough things for you to clash. Right. You know, पिछले सीजन में जैसे Rebel Kid, you know, shined when she, you know, Yeah. threw out Raj Kundra Correct. when she caught him. इस सीजन में आपको क्या लगता है कि I hope पारुल के साथ ऐसा हो. But ये तो वक्त ही बताएगा कि अगले एपिसोड में do the traitors get revenge? Does she go further? But right now Parul is riding that same high wave कि मैंने ट्रेटर पकड़ा, मैंने ट्रेटर पकड़ा. हाँ हाँ But as a traitor मैं उसको क्रेडिट देना भी चाहूंगा. जी, हाँ. उसने कमाल किया. Rebel Kid was one of the most popular people across reality TV for that year. yeah. Because उसका स्टाइल ही अलग है बोलने का. और वो किसी से स्टार्ट ऑफ द शो में literally she did that. Yeah. Yeah. So इस सीजन भी वो हो गया हमारा, बट 1-2 एपिसोड लेटर हुआ है. उनका तो पहले एपिसोड में episode पकड़ में, लिया था. हाँ. I hope we have such stories, but again, you cannot
you cannot predict what's going to happen ahead. Correct. You know, some of the surprises for us was, say, a Malika Sherawat, who we have seen for in a very different avatar back in the day. Suddenly, she's in a reality show. What was she like? What is she like? She was amazing to me. हाँ. बिकॉज हमने शो एंटर साथ में किया था. अच्छा. हम उस गाड़ी में साथ में थे. Yes. अभिषेक मलान, मलिका शेरावत एंड मी. हाँ. So that was so entertaining because आपने किसी को बड़े पर्दे पे देखा है. हाँ. She's quite a like epic Yeah. big figure in your life when you were Correct. growing up, क्योंकि आप मर्डर आपने देखी, आपने जी. उनकी सारी मूवीज देखी. Hmm. And she was also a, you know, icon in terms Yeah. of she was bold, she was Yeah. not, she was fearless to talk her mind. Then she went to Hollywood. Yeah. Jackie Chan के साथ मूवी की. Hmm. So for me, I was starstruck initially, Hmm. but she just broke that barrier because she came across as a friend, Hmm. easy to talk to. Hmm. वो गेम से मतलब ही नहीं था उनको शुरू में. तो हम्म. कहती यार मेरे गुची के 2-4 ड्रेसेस है, ये दिखा देना, मैं खुश हो जाऊंगी. और हरमन अभिषेक बता देना किसको वोट करना है, मैं डाल दूंगी. अरे वाह. You know, Bollywood wise में Shalini Passi turned out to be a star. She turned out like, you know, suddenly she came from nowhere and such a like अलग ही कुछ है वो भी. I really like her very I love much. There's some different positivity around her. What was she like? What did you observe? She's one of those blessed people हाँ. who comes from a certain opulence. Correct, yeah. But never did she ever let us feel that. Yeah, yeah, yeah. वो एक शो में जैसे आई है, वो उसी रूम में जहाँ पे एक डेजिग्नेटेड फीमेल एरिया था, वहीं चेंज करके तैयार होके एक्साइटेडली चैलेंजेस के लिए जाना. शी हैज अ चाइल्ड लाइक अम्यूजमेंट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न Correct. एंड अब्सॉर्ब. सबको इंडिविजुअली जाके उन्होंने हाय हेलो माय नेम इज शालिनी, व्हाट्स योर नेम, कहाँ से हो, क्या Right. हो, किसको मिल जानती हैं. वो बहुत ही अप्रोचेबल है. शो के बाद हमारा एक ग्रुप बना, उसमें वो कॉल करती हैं जब वो किसी धार्मिक जगह जाती है Yeah, yeah. कि यार तुम लोग भी आशीर्वाद दो. Yeah. घर पे प्रसाद भेजा उन्होंने, भेज दिया. गिफ्ट्स that's what she भेजे. sends, yeah. फॉर समबडी आई एम श्योर उनकी लाइफ बहुत बिजी होगी, बट टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ अस, वी जस्ट मेट ऑन द शो फॉर 5-6 days. शी इज स्टिल थैंकिंग मी फॉर कि यार तुमने मुझे ना उस दिन इलेक्ट्रोलाइट्स दिए थे जब हम धूप में शूट कर रहे थे, उस दिन के लिए थैंक यू. Wow, that's आई रियली अप्रिशिएट पीपल लाइक Yeah, दैट. true. शी इज जेन्युइनली अ वंडरफुल पर्सन. She is very different. Then there's a Riya Chakravarti who has had such a turmoil in her life. Today, look at her. She's an entrepreneur. She's, you know, Chapter 2. Yeah, chapter 2. And here, what did you observe about her? आई थिंक मैं रिया को तब से जानता हूँ जब वो MTV ज्वाइन किया. Oh, nice. Okay. So that time all the VJs were Jose, Anusha, Ranvijay, Cyrus's Dost, and VJ Riya came as the new Correct. kid on the block. Correct. तो हम लोग फौजी कनेक्शन भी है, फौजी फैमिली से आते हैं, एक जैसी अपब्रिंगिंग रही है. And having seen her go through what's happened in the last 5-6 years, anybody in a position would have crumbled. Yeah. You know, it's not easy. None of it was easy. Correct. All of it was unfair towards her. For somebody who's innocent and you're, you know, just going after her. Yeah. And now all the courts, everything has acquitted her कि भाई आपने literally 1% का कुछ गलत काम नहीं किया. She has been the force that's kept her family together. Nice. As घर की बड़ी भी है वो, you know, automatically responsibility आती है. शोविक का भी उसने ख्याल रखा है. पापा मम्मी के लिए she was strong for her parents at that time. Because parents don't want to see a child suffer. And you can see that strength in her eyes. She's always had the confidence. Right. But now she's like a force to reckon with. वो रोडीज पे जब आई तो मैंने जो रोडीज देखना शुरू किया, वो इतनी सही थी as a gang leader. And as a traitor cast, she is just one of the sharpest minds. Wow. That is really something. So I have to give it to her, man. She's the one friend who I know is the strongest person in the room. Right. Mentally, emotionally. Right. And I'm just like, I love the fact that she's now doesn't have any restrictions. उसका बैंक अकाउंट ये वो हर चीज पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया था. Yeah. True. And अब वो फ्लरिश करेगी, उसके स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं, काम बढ़ते जा रहा है. Nice. Good to see that. Very Great good to see. that. Yeah, very happy for her. Then, you know, then there's a Munawar who again has a following of his own. You know, he's like a cultural icon. Yeah. True. What is there to learn from him? From Munawar, I learned यार कि वो एक्चुअली लाइफ में ना किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहता. उसका इंटेंशन बहुत ही क्लीन और प्योर है. जिस हिसाब से वो बात करता है, वो गेम में भी आया तो इंटेंस था. ही वाज प्लेइंग द गेम वेरी हार्ड, बट एज अ पर्सन ही इज वेरी नाइस. ही इज हमारी बात अभी शुरू हुई है ज्यादा इंटरव्यूज आफ्टर द शूट, बिकॉज आई थिंक वो शुरू में ही फेल्ट कि यार हरमन तो अपना बंदा था, इसने मेरे खिलाफ क्यों किया ये. बट एज अ ट्रेटर इट वाज द राइट थिंग टू डू. It's a game. Yeah. As a traitor, I would encourage the innocents to take out an innocent.
मुनावर से यार ये स्टेज प्रेजेंस वो बहुत काम करता है अपने उस पे राइटिंग पे Nice. and he fills stadiums for a reason because he's got that connectable tissue Yeah. and his humor is far superior than a lot of people because वो बहुत ही evolved humor है Correct. और Okay. fearless humor है Fearless. जो बड़ा मुश्किल है आज की दुनिया में करना बिल्कुल. so hats off to him he's a voice of the youth of the young there are only 4-5 people who have such a strong voice in the comedic world Nice. If you were to tell people that watch out for these 4-5 people that On the show? on the show this season, they can go a long way also, and they play very well. कुल्लू Cool. कुल्लू मेरे भाई कुल्लू ने मेरे को इतना बचाने की कोशिश की है रिया और कुल्लू ने उस सर्कल ऑफ शक में शेफ रणवीर के खिलाफ लिटरली 7 वोट लेके आए सो आई थिंक एज अ ट्रेटर कुल्लू इज डेफिनेटली कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रांग Strategy. क्रिस्टल कि मेरे दोनों ये ओरिजिनल ट्रेटर्स हैं हम तीनों को पिक किया गया था इन दोनों पे से सारी उम्मीदें मेरी टिकी हुई हैं Okay, that's nice. और फ्रॉम द इनोसेंट्स आई थिंक शेफ रणवीर एंड रिया हाँ. ये दोनों हैं और एक जो वाइल्ड कार्ड है वो श्वेता तिवारी हाँ. क्योंकि श्वेता तिवारी इमोशनल है अभी गेम में आपने जितने 3 एपिसोड देखे ना शी इज प्लेइंग विद इमोशंस Yeah. She's जब वो इमोशंस एक बार उन्होंने साइड करके गेम पे वो नजर डाली कि भाई कौन है ट्रेटर वो पकड़ लेंगे Wow. उनका इतना एक्सपीरियंस रहा है उनका एक्सपीरियंस भी है. Correct. बिफोर गोइंग टू सच अ शो, लाइक आपने एक पहले आंसर में कहा कि सब कुछ बता देते हो, आप भूल जाते हो कैमरास कहाँ पे है. डू यू एंड रणविजय और एनीवन इन योर फैमिली फ्रेंड्स टेल यू बॉस ये बताना, ये मत बताना, दिस इज हाउ यू होल्ड बैक, डोंट ओपन होल बुक ओवर देयर? ऑफ योर पर्सनल लाइफ यस. हाउ डज मेरे को तो काफी लोगों ने काफी कुछ बोला है बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज प्रोटेक्टिव अबाउट यू या और रियलिटी शोज पे आप लिटरली इट्स द नेकेड ट्रूथ ट्रू. आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे एक शो पे उतनी आपकी पर्सनालिटी रिवील होती जाएगी जी, इट्स जी. लाइक बीइंग इन अ स्पोर्ट Correct. माय फादर ऑलवेज सेज प्ले अ राउंड ऑफ गोल्फ और टेनिस और बास्केटबॉल विद समबडी टू सी देयर रियल कैरेक्टर एक तो हम प्रिटेंड करते हैं तो रियलिटी शोज पे भी ऐसे होते हैं आपकी रियल पर्सनालिटी निकलने वाली है तो उसमें आपकी लाइफ कैसी रही है आपने क्या सही गलत एवरीबडी इज मेड मिस्टेक्स how public are those mistakes and if your family is solid like I'm blessed my family is solid Yeah. I can always go back to them with my head held high there are no secrets from them but मेरा सिर्फ ये था कि यार मैं अपने माँ बाप और भाई को ज्यादा इसमें इन्वॉल्व ना करूं जी. बिकॉज मेरे भाई की रेपुटेशन ज्यादा एट स्टेक है रियलिटी शोज में ही इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन Yeah. सो आई वाज जस्ट केयरफुल अबाउट दैट कि यार किसी को डिसरिस्पेक्टफुली बात मत करो Yeah. जो कि Which बहुत you सारे never लोग do that. बदतमीजी से बात कर रहे हैं वीडियोस पे अब मैंने देखा हाँ. जो पहले एपिसोड में अरे ये अलग ही शो चल रहा है मैंने सोचा ट्रेटर्स इज मोर गेम बेस्ड बट पीपल आर गोइंग पर्सनल रिमार्क्स Yeah. व्हिच आई थॉट Stand out. Yeah. मैं पर्सनल किसी पे नहीं जाऊंगा इस गेम में एंड आई थिंक आई हैव डन दैट Yeah, true. Suppose you get to go back inside. What is the one thing that you will do? विंड मैं तो पूरी तैयारी करके गया था यार कि जीत के मैं क्या करूंगा उस पैसे का और Right. कैसे मैं जीतूंगा और वो क्या मोमेंट होगा बिकॉज स्पोर्ट्स में लोग बोलते हैं ना कि विजुअलाइज द एंड तो मैं विजुअलाइज करके गया था करके गए थे. बट अगर दोबारा मौका मिला इस सीजन में या अगले सीजन में आई वुड प्ले इट अ लॉट मोर कामर रिलैक्स्ड बिकॉज जैसे आप हाइपर होते हो और जैसे आप डिसऑनेस्ट होते हो आप पकड़े जाते हो इसमें Right. इंस्टेंट डिसऑनेस्टी गेट्स कॉट Right. चलिए मुझे बहुत दूर जाना है तो बहुत अरे सर रिस्पेक्ट कैसे इतना ट्रैवल करके अब आप जो आए हो सिर्फ आपके इंटरव्यू के लिए. लव इट Thank you so much, Arman. थैंक्स अटॉल Hi, I'm Harman Singha and you're watching Bollywood Hungama.